Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari. And in today's session, we're going to pick up important themes and ideas which are going to help us to tackle mains examination and pick up themes for the prelims and also for the personality test. It's a very, very comprehensive exercise which had been undertaken by many of our aspirants also. They have been trained to take it so that जब वो mains लिखते हैं तो वो खुद feel कर सकें. Couple of our students have also written main with that strategy and also there is bound to get success. 79 years as a nation, 5,000 years as a civilization. अब 79 years as a nation and 5,000 years as a civilization, ये बात हो रही है एक कॉन्टेक्स्ट में, एक तरीके से पोएटिक और एथिकल, और एक तरीके से आप कह सकते हो सेफ्रन फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात हो रही है, पिलग्रिमेजेस की बात हो रही है, नॉलेज की बात हो रही है, नर्चर्ड स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है. क्वेश्चन उठता है कि क्या ये आप वर्ड जब एग्जामिनेशन में एथिक्स या फिर जनरल स्टडीज के पेपर 3 की बात होती है या फिर आप एसए की बात करते हो तो क्या आप ये लेके आ पाएंगे? क्या आप 2 लाइनों में स्पिरिट ऑफ कश्मीर आपसे कोई पूछता है, स्पिरिट ऑफ कश्मीर, व्हाट इज स्पिरिट ऑफ कश्मीर, विल यू एबल टू ब्रिंग इट? So that is how the idea is. So art, culture, music, handicrafts, food and the spirit of Kashmir. कश्मीर की स्पेलिंग में आप ध्यान दीजिए, कश्मीरियत जिसको कहा गया है ये उसकी बात हो रही है. So that's how it is. That's the beauty. हमने पहले भी चर्चा की है that how this is an ongoing process of special जो रिविजन चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव एक्सरसाइज है with respect to uh, identification that whether a person is eligible to be a voter or not. So Supreme Court had asked Election Commission that you have to publish list of 65 lakh deleted voters names with reasons. So why? Because the key point here is right to vote and fairness and transparency. Okay, right to vote and fairness and transparency is the key over here, जिसके कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं. आगे चलते हैं तो आप देखते हैं कि on what basis Supreme Court would be saying so. So the challenges are faced by Election Commission also. It is asking, Supreme Court is asking Election Commission to give wide publicity to the exercise through public notices in vernacular and English dailies with maximum circulation in Bihar and be broadcast on Doordarshan and All India Radio. अगर डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर के पास सोशल मीडिया है, इफ बोला, अगर सोशल मीडिया हैंडल है तो लिस्ट उस पर भी पब्लिश होनी चाहिए. And the notices must expressly mention the persons who do not have their names in the draft roll may submit their claims for inclusion in the final list along with their Aadhaar cards. तो ये एक बात है, ये एक हमारे यहाँ एक बहुत ही मूलभूत तरीका है. चैलेंजेस की बात भी की. सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन को कोई डायरेक्टली कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सो the idea is that how Supreme Court is functioning to make sure that जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके राइट्स हैं वो प्रिजर्व हो सके. जबकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वी वर हाउंडेड बाय ईवीएम्स. उस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू गो बैक टू द पेपर बैलेट. अब बात होती है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज अब कह रही हैं कि वोट चोरी, तो क्या वाकई है? But what is the idea? The idea is that Election Commission is not concerned with their perception, but with the legality of the exercise. और democracy में political parties will have their own necessities of projecting a particular political perception in society to win the election. तो ये एक अच्छा मुद्दा है. जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये की पॉइंट्स आने चाहिए. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, उन्होंने, वी डू नॉट वांट सिटीजंस राइट्स टू बी डिपेंडेंट अपॉन पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स. पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के द्वारा आप क्यों सब कुछ सारे काम कराओ? क्या एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं हो सकता कि जहां पर जो है आम आदमी को पॉलिटिकल पार्टी के पास ना भागना पड़े? और पॉलिटिकल पार्टीज के पास भागने ना पड़े, क्या इंटरनेट पे आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते? क्या आपको ऐसा मैकेनिज्म नहीं आइडेंटिफाई कर सकते? क्या डोर टू डोर कैंपेनिंग वॉलंटियर्स के द्वारा नहीं हो सकती? सो ये कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो उठाए गए. एंड देन वी हैव टू सी द ट्रांसपेरेंसी विल हेल्प create voters confidence.
सो एक एडिशनल स्टेप लेने की उन्होंने बात की, वेबसाइट पे डालने की बात की। तो ये एक पॉइंट है जैसे आपकी जो सोच को आपकी बताता है। अगला अगर हम टॉपिक की बात करें, सो देयर इज अ क्लाउड बर्स्ट विच इज हिटिंग किश्तवाड़ विलेज। एक एग्जाम्पल आता है। तो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज डूइंग, व्हाट द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज डूइंग, व्हाट द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज डूइंग। क्या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा भी क्या हम रेडी हैं? तो आपको ऐसे एग्जाम्पल से आपको यू नो आपको रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिमीडियल मेजर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि बात ये नहीं है कि 40 किल एंड ओवर 100 मिसिंग, अभी भी वो कंटिन्यूड है। दिस इज अ सिनेरियो फॉर फ्यूचर। लोकल वॉलंटियर्स की क्या ट्रेनिंग है? क्या हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं ऑलरेडी कि इस तरह की सिचुएशन हो सकती है? बिकॉज आधे घंटे के अंदर जब पानी आता है क्लाउड बर्स्ट के बाद, रोलिंग बोल्डर साथ में आते हैं, तो घर, टेम्पल, मल्टीपल गवर्नमेंट ऑफिस सब कुछ डैमेज हो गया। सो इट इज एन आफ्टर वर्क की आप एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जो हुआ उसका आप क्या करेंगे? कमिंग टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट शुड एचआईवी और एड्स टेस्टिंग बी मैंडेटरी बिफोर मैरिज। ये एथिक्स की केस स्टडी की तरह है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? इट इज पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट। तो इस पे डिबेट है बेसिकली, बिकॉज इन मेघालय इट इज मेघालय अनाउंस दैट state may follow Goa in making HIV or AIDS test mandatory for all before marriages. Because the problem is multidisciplinary. It is not merely a question of health. It involves question of human rights, stigma, and free will. So there are two debates. Okay. तो इसमें एक पॉइंट का कहना है कि regarding HIV, making anything mandatory is not acceptable. Counseling before testing is there. Testing only with the consent of the patient. Legally, you can't force. And if the test is being done, it has to be confidential. If the test is positive, patient should be linked to the appropriate antiretroviral treatment center. और दूसरा ये है कि इफ ए पर्सन इज ऑल्सो HIV पॉजिटिव और वो दवाई भी ले रहा है, देन a person is showing undetectable level of viral load and will not transmit infections sexually to their partners. तो दूसरे पार्टनर को HIV रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, सच एज ट्यूबरक्लोसिस एंड वेरियस अदर कोमॉर्बिड कंडीशंस, एंड और नॉर्मल इम्यूनिटी लेवल रहेगा। तो मैंडेटरी HIV टेस्टिंग विदाउट कंसेंट ऑफ सच ए पर्सन विल बी ह्यूमन राइट्स वायलेशन। इससे स्टिग्मा भी बढ़ेगा। सो टेस्टिंग शुड बी ऑफर्ड टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, बट लेकिन आप जो है कैसे करेंगे उसको? दूसरा डिबेट का पॉइंट ये है कि मैंडेटरी होनी चाहिए बिफोर मैरिज। हो सकता है एंटीवायरल, एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन आर नॉट टेकन रेगुलरली, या फैमिली के या सोशल प्रेशर से मैरिज हो रही होगी। बाद में पता लगता है चिल्ड्रन भी HIV हो जाएंगे। हमारे यहाँ हॉरोस्कोप मिलाया जाता है, HIV टेस्ट क्यों ना मिलाया जाए? दूसरा क्वेश्चन उठता है दैट विल इट बी एक्चुअली एम्पावरिंग वुमेन? इन नॉर्थ ईस्ट वन से दैट HIV पॉजिटिव स्टेटस को तो कंसील किया गया, इंजेक्टेबल यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 65% इन्फेक्शन इन नॉर्थ ईस्ट। और मेन इंजेक्टिंग ड्रग यूजर जो ड्रग लेते हैं 3 महीने तक, वो शादी ने मतलब शादी के बाद तक, शादी के समय यू नो मैंडेटरी टेस्टिंग, दैट इज वन बिलीफ। और कॉन्फिडेंशियल कंसल्ट की जहां तक बात है, डॉक्टर्स आर फोर्सफुली टेस्टिंग फॉर HIV। even if you go for a small dental procedure,
In case of dental procedure, it is definitely there. That has to be seen. So this is a double point. Will HIV test, if it comes negative, provide a false sense of security? आप appropriate testing करो, counseling करो, और उसके बाद आप टेस्ट की बात करते हैं, तो मतलब ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस और इंपॉर्टेंट इशू है. कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. गोवा ने मैंडेटरी टेस्टिंग कुछ समय पहले की, बट इट इज स्टिल नॉट अ रियलिटी. वाइड spread testing happens. There is no mandatory testing before wedding. Infections have been rising, but the states like Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, as well as Maharashtra, appropriate HIV testing की in appropriate settings with proper consent. And situation is quite different in Meghalaya, because you have to understand circumstances and people of the state. Certain groups like Christian community in Meghalaya, they still think it's a taboo to use a condom, even if it is recommended by law. That is why cultural and social provisions are very important. And HIV is a big reason for discrimination. But social and cultural ideas also matter. And stigma to hai, because for the first time when HIV was found, it was detected in a commercial sex work. And it was attributed to multiple partner sex. HIV is a incurable disease. Common people must be aware कि treatment है. It is a permanently controllable. It helps in prevention of transmission if the viral load goes down. Undetectable is untransmittable. ये जो फैक्ट है, ये आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं. पर स्टिग्मा को आप कैसे हटाएंगे अगर सोसाइटी में ये क्वेश्चन आ जाता है इन जनरल स्टडीज पेपर 1? एजुकेशन, काउंसलिंग, and then the impression. So similarly, if you say that someone has cancer, they say without hesitation that their family members died of cancer. If they are diabetic, then they say that they don't use sugar. If they have hypertension, they don't mind asking you to not to put salt. Similarly, हमें HIV people को भी मौका देना चाहिए, बिकॉज HIV हो गया, TB हो गया, इन सब के साथ बिहेवियरल इशू आ जाते हैं. बट एज आई जस्ट सेड, अनडिटेक्टेबल इज अनट्रांसमिटेबल. ये जो स्ट्रैटेजी है, and the quality of counseling will make a lot of difference in case of India. अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया की लेगेसी की और उसकी डेमोक्रेसी को हम डिफेंड करने की बात करें, then there are different ideas behind what nationalism is and what it stands for certain political party or political thought. If you are saying that a nation is realized the dream of only the founders who are not reflecting all sections of society, तो वो भी एक बात है. Socio-economic order cannot be detached from the market-based economy. Farmers हैं, workers हैं, they are all part of the even capital setup. And then the idea that different sections of society, they are not being together, and there is a discrimination that is not going to bring anything. Speaking about someone's food, someone's lifestyle, eating habits, identity, इससे भी देश का विकास नहीं हो सकता. And that is how the architecture of the constitution comes into picture, because they have created mechanisms, they have created governance role, they have created fiscal sharing. So in India, prelims के लिए अगर आप देखते हैं, तो यूनियन इज नॉट अ लीग ऑफ स्टेट. इट इज नॉट जस्ट अ लीग ऑफ स्टेट्स. इट हैज इट्स सोवरेनिटी. There is a constitution equilibrium, and that is very very important, and that is why PT में questions भी आते हैं. There are investigative bodies and central administrative mechanisms, and even governor's role.
जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में बात भी चल रही है. So in examination, you have to bring the keywords and also ideas rather than a generic writing. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे में A350, A350 दैट आई मीन टू से, एंड C295 एंड H125 डेवलपिंग इंडियाज एरोस्पेस सिस्टम्स. तो ये आपको नाम ही याद रहे तो कोई बुराई नहीं है. C295 एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन, H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन, and exporting 1.4 billion per year of components and services. टू पायलट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग एंड डिजिटल सेंटर है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट सेंटर है. एयरबस. सो एयरबस, हाउ एयरबस इज डेवलपिंग इंडिया एरोस्पेस इकोसिस्टम, ये आपको फैक्ट लिख के ही मेंस में काम आ सकता है. पीटी में तो कोई नाम नहीं आने वाला. लेकिन फाइनल असेंबली लाइन ऑफ C295 एयरक्राफ्ट एंड H125 हेलीकॉप्टर, and you are writing about export also, then it is also going to help. Again, आपसे कोई पूछ रहा है कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस में, अगर हम बात करते हैं कि आप 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनेंगे और आप विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या 10 बातें आप पकड़ेंगे. तो बहुत अच्छा यहाँ दिया है. नेशन ऑफ इनोवेशन, डिजिटल इंडिया उसका एग्जांपल है. वन टैप इंस्टेंट पे यूपीआई है. बिल्ट इन इंडिया, बिल्ट फॉर द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया है. हाई स्पीड न्यू जर्नीज वंदे भारत है. कंकर्ड हाइट्स ब्रिज डिस्टेंसेस चेनाब ब्रिज है. ट्राई कलर ऑन द मून चंद्रयान है. फियर फॉर एनिमीज ब्रह्मोस है. ऑपरेशन सिंदूर है. लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क 395 दिल्ली एनसीआर. इंडिया सेट टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, न्यू पार्लियामेंट एंड G20 प्रेसिडेंसी. So wonderful ideas, I think very, very important ideas, and they are going to, give you more impetus when you are writing the mains examination. Defense is a very, very important area. और वहां पर आप देखेंगे तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसका एक बोल्ड टारगेट है, 3 लाख करोड़ एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन एंड 50,000 करोड़ एक्सपोर्ट बाय 2820. डिफेंस प्रोडक्शन इज एक्चुअली हिटिंग एवरी ईयर. एयर पावर का एग्जांपल यहां पर दिया. शॉर्ट टर्म एयर पावर गेन्स hinges on scaling LCA, light combat aircraft, Mk1A production. Deeper private sector integration into Hindustan Aeronautical Limited supply. एयर डिफेंस की एक एग्जांपल है यहाँ पे आकाश, एंड ऑल्सो प्रोजेक्ट कुशा. तो आपने एक दो एग्जांपल याद किए. मैरीटाइम पावर का भी एग्जांपल है अंडर प्रोजेक्ट 75-1. तो थिसन क्रूप मैरीन सिस्टम्स रिमेन द सोल पेयरिंग फॉर AIP सबमरीन्स. कमर्शियल क्लोजर नेक्स्ट स्टेप है. आर्मीज अक्षतीर एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम. वो आपको कुछ एग्जांपल्स तो याद रखने ही पड़ेंगे. इंडस्ट्रियल डेप्थ की बात है. सृजन पोर्टल एंड पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, 14,000 आइटम से भी ज्यादा हमने इंडिजिनाइज कर दिए हैं. द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, उसका हमने पहले भी एग्जांपल दिए हैं. सो it is a kind of a great move forward. Indus X initiative under the US India ICET framework, it has evolved into joint tech challenges and co-production planes. और रफेल की बात तो है ही फ्रांस के साथ. तो ये एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रहने ही चाहिए. सो फ्रॉम पॉलिसी टू ऑपरेटिंग मॉडल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिना फैक्ट्स के आप you cannot do justice. So please note down these keywords and we have to revise them also. So example of, for example, Thierry Methau, ambassador of France to India, उन्होंने बोला India France defense industrial roadmap. Similarly, the idea of Shaibal India, Jajati Mohanty, it is speaking about Indian Navy with Camp Compta S100 and advanced proven and Vitol US unmanned air vehicle की तरह हम बात कर रहे हैं. तो it is enhancing maritime surveillance. So couple of examples we have to have. जैसे new backbone of India's military innovation के यहाँ पे examples दिए हैं. So you have to pick up key example, जैसे Navy का sprint initiative. फिर उसके बाद जो है आप मैरीटाइम एंड एयरबॉर्न इनोवेशन में सागर डिफेंस इंजीनियरिंग. MSME की स्केलिंग अप की आप 1 लाइन 2 लाइन लिख सकते हैं.
और फिर आप जो है सृजन पोर्टल की बात हमने पहले ही की, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात भी हमने की, तो इसीलिए निश से नेसेसिटी की तरफ हम बढ़ गए। तो आपको थीमेटिक एक्सरसाइज एक करनी पड़ेगी जो हम थीम्स मेंस के लिए चाहते हैं, एंड दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प। अगले पेज पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो इसी तरह की है, कैसे इंडिया का डिफेंस का जो फ्यूचर है, कैसे वो तेजस मल्टी मॉडल मल्टी रोल एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एंड प्रोड्यूस्ड बाय एचएएल, एडवांस मिसाइल सिस्टम्स एंड फायर पावर, उसमें ब्रह्मोस है, अग्नि सीरीज है, आदि तो आपको नाम पता भी है। सिमिलरली इकोसिस्टम इनोवेशन एंड इंडस्ट्री, जो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में बात हो रही है, इंडिया इज नॉट अ बायर, इट इज अ बिल्डर नाउ। वी आर ए पीस लविंग कंट्री बट वी स्टिल मूव फॉरवर्ड, ब्रिजिंग गैप एंड लुकिंग अहेड। सो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, एक स्कीम का भी आपने राइट एग्जांपल दे दिया, जो दुनिया से अलग है, जो कोचिंग सिस्टम से अलग जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आपका भला होना निश्चित है। उसमें फिर बीएई का रोल भी है, नेवल ग्रुप यहाँ पे एग्जांपल दिया है। और अगर हम फ्यूचर वारफेयर की बात करें तो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल कैसे, डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज एम्प्लीफाइड द काइनेटिक पावर ऑफ स्मॉलर एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एंटिटीज मोर देन दैट ऑफ द माइटिएस्ट नेशंस। अपने आप में एक कोट हो गया ये, जैसे C4I, साइबर वॉर, ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, ऑगमेंटेड रियलिटी टर्बो चार्ज बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो कुछ कीवर्ड्स तो हमको लाने ही पड़ेंगे, तभी आप जो है जस्टिस कर पाएंगे। लेकिन एसए में अगर आप बात करें तो डेरेक ओब्रायन, अ वेरी प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर फ्रॉम तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने बोला रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, 8 आउट ऑफ 10 एम्प्लॉयड और यूथ, क्रिएट जॉब्स। तो ये थीम अच्छी है, लेकिन आप ये ऐसे नहीं लिख सकते कि एवरेज एनुअल ग्रोथ सिर्फ 0.2%, जबकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, बूस्ट स्किलिंग, हेल्थ, रिमूव 18% जीएसटी। तो आइडियाज अच्छे हैं। स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ केयर तो आप कह सकते हो 2% ज्यादा होना चाहिए। एम्स की पूरी वैकेंसीज भरनी चाहिए। तो आपको इसी को आप रिफ्रेश करके नोट कर लीजिए। यू नो, स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए माइनॉरिटीज के लिए, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, चाइल्ड लेबर ऑब्वियसली इरेडिकेट होना चाहिए। तो दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स आई वुड से। टाइम बाउंड रेजोल्यूशन होना चाहिए, हार्मोनाइज पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन, बहुत अच्छा पॉइंट है। मेक सेस एंड सरचार्ज पार्ट ऑफ डिविजिबल पूल, या फिर वो जब जरूरत नहीं है तो उसको बंद किया जाना चाहिए। तो दीज आर वेरी वेरी गुड पॉइंट्स। गिव मोर टाइम टू अपोजिशन, 70% टाइम इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। अपॉइंट ए डिप्टी स्पीकर of the Lok Sabha, the post is vacant since 2019. Have a fixed parliamentary calendar with a minimum 100 days of sitting। तो आप भी इसमें से कुछ आइडियाज अपने आंसर्स में ले सकते हैं, बट देन यू आर नॉट सपोज टू डायरेक्ट वो। सो दीज आर वेरी वेरी स्मार्ट आइडियाज। तो आप एग्जाम में ये नहीं लिख सकते कि प्राइम मिनिस्टर मस्ट विजिट मणिपुर तभी कुछ होगा, ऐसा नहीं है। दे हैव देयर ओन वे, दे आर गिवन द चार्ज बाय द पीपल, सो दैट्स अ डिफरेंट वे। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन स्ट्रे डॉग इज ह्यूमेन, एक आइडिया ये है। लेकिन दूसरा आइडिया है कि भाई इट शोज लैक ऑफ कंपैशन एंड एनिमल्स along with humans which makes it a home। तो अब बात हम जानते हैं कि यू नो ये भी एक डिबेट है, बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है। इवन इन्होंने महात्मा गांधी का नाम भी लिया है। रोविंग डॉग्स डू नॉट इंडिकेट कंपैशन एंड सिविलाइजेशन सोसाइटी, दे बिट्रे द इग्नोरेंस एंड लेथार्जी ऑफ इट्स मेंबर्स। तो गांधी जी ने एम्फेसाइज किया रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप होना चाहिए, इवन डिस्ट्रक्शन की बात भी उन्होंने की। अब वही बात है, वो तो अहिंसा में विश्वास रखते थे। ट्रू कंपैशन इन्वॉल्व्स प्रिवेंटिंग सफरिंग फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, विद ह्यूमंस कमिंग फर्स्ट। सो गांधी जी का जो विजन है वो अब, अगर सुप्रीम कोर्ट भी यही बोलता है कि हटा दिया जाए कंप्लीटली, तो हमने पहले देखा कि उन्होंने पहले तो यही बोला, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको चेंज कर दिया। तो इंडिया का जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स थे वो फेल हो गए, क्योंकि इनहेरेंटली फ्लॉ थे, अनवर्केबल थे। अगर 90% स्ट्रे डॉग्स को भी स्टेरिलाइज करके रिलीज कर दिया जाए तो मेंटेनेंस और फीडिंग जो है वो भी बहुत मुश्किल है, ऐसा एक डिबेट के पॉइंट को कहना है। आर्टिकल 21 की गारंटिंग द राइट टू लाइफ एंड सेफ इन्वायरमेंट, जो ह्यूमन बींग्स की पहले बात की जाएगी। और रेबीज तो प्राइमरी ट्रांसमिटेड टू स्ट्रे डॉग बाइट्स एंड क्लेम्स न्यूमरस लाइव्स।
India's share accounting for 36% of the global deaths. So these are very, very crucial. So ABC rules, they prioritize animal rights और public health and safety. ये बहुत गलत है. एंड एबीसी जो बात हुई, वो रूल जो है वो एनिमल राइट्स ओरिएंटेड हैं. स्ट्रीट डॉग को ज़्यादा राइट मिल गए इंसान से. Protected tigers may be shot if they kill people. Human attackers are jailed, but stray dogs under the rule are released and fed right where they may have mauled or even killed children. Not just children, adult की बात भी हम कर रहे हैं. तो आपको भी ये सारे आपको पता होना चाहिए. रुक्मणी देवी अरुंडेल, शी pioneered PCA Act, envisioned protecting animals from unnecessary suffering, not granting them greater rights than humans. तो वही बात है कि करिए लेकिन इंसानों से बढ़ के नहीं. और सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन इन्होंने प्लस का. लेकिन वही अगर आप बात करते हैं कंपैशन की, तो दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अगर ये कहना है कि 8 लाख डॉग्स हैं एंड दिल्ली के पास सिर्फ 20 टेम्पररी शेल्टर्स हैं, तो कैसे काम चलेगा? तो रियल कॉज ऑफ दिल्ली स्ट्रे पॉपुलेशन इज अबेंडनमेंट, और वो जब एक डिस्कार्डेड पेट इज एक्चुअली मीटिंग विद अदर डिस्कार्डेड पेट, उससे जो है फिर देयर इज कमिंग अप ऑफ मोर एंड मोर डॉग्स. तो वही बात है कि एक पूरा बिहेवियरल चेंज चाहिए और ह्यूमैनिटी के साथ ट्रीट होना चाहिए. तो दैट इज व्हाट इज अनदर अनदर व्यू पॉइंट. सो हम जानते हैं देयर हैव बीन मोर डेवलपमेंट इन दिस रिगार्ड, बट वी हैव टू सी की पॉइंट्स की कैसे डेवलप हुआ. नेक्स्ट जनरेशन ईसीटी बस विद सुपीरियर राइड क्वालिटी टू पावर इंडियाज विजन टुवर्ड विकसित भारत. एक एग्जांपल है, ये भी एक एग्जांपल है कि कैसे without development we cannot actually move forward to the Viksit Bharat. So and in that context, electric vehicles are going to play a very, very important role. So it is shown here as an example that how Newton Autos manufacturing plant in Pune is an example. तो ये अपने आप में एग्जाम्पल है. स्कूल बसेस, नेक्स्ट जनरेशन स्कूल बसेस, स्टाफ बसेस, and connecting cities with green corridors. So these are all very important points. तो आपको ये keywords मेंस के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं. अब one district one product prelims के लिए बहुत important हो सकता है, very important. But then there is a way to remember it. जब आप सोचते हैं सहारनपुर, okay, what can be there, okay, wooden handicraft, तो उसमें भी आपको शीशम वुड पता होनी चाहिए. चित्रकूट के वुडन टॉयज, फिरोजाबाद के ग्लास बेंगल्स एंड दियाज, एंड मैनपुरी का तरकाशी वुड इनले वर्क. तो आपको कुछ इसमें से याद होने चाहिए और कुछ बाकी तो एग्जाम के हिसाब से मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर अवेलेबल. इम्प्लीमेंटेशन 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आ गया यहाँ पे? सिद्धार्थ नगर रिवाइवल ऑफ जीआई टैग कलानमक राइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो आप देख सकते हैं. सेलिब्रेटिंग जूट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स. मेंस के लिए एक पूरा क्वेश्चन है, लेकिन पीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट. आपको आइडिया होना चाहिए कितने लाख फार्मर्स आर डिपेंडेंट अपॉन जूट, हाउ गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग देम थ्रू सब्सिडी और यू कैन से थ्रू स्कीम, how the new jute mills have been coming up, what is the MSP for jute, and then how annual purchase of bags is mandatory, and how PSUs and other government firms they are doing it. And then you have Patsan Bhavan in Kolkata for all jute organizations under Ministry of Textiles. And then you have 40,000 girls, children of the jute mill and jute MSME who got scholarship. ये फैक्ट्स आपको एक जगह लिखने पड़ेंगे. तो जूट क्या है आप फट से लिख सकते हैं, नेचुरल, इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल, सस्टेनेबल फाइबर ऑफ इंडिया विच रिड्यूसेस कार्बन फुटप्रिंट्स. सो ऐसे करके हमें एक छोटा सा थीम हमारे पास रेडी होनी चाहिए. आज ही होगा तो अच्छा है, कल कभी नहीं आता. Now the summit of Alaska, which did not bring any kind of much desired results. So आपको सिर्फ मीटिंग वेन्यू पता होना चाहिए, must know it on the geographical map. And secondly, the idea that what US wants and how Russia behaves, and अभी तो फिलहाल सबसे बड़ा जो स्टेप वो यही है कि it is forcing India, because India is purchasing Russian also, it is it is forcing
India to, to step back, because US is actually having other interest also. It wants to export to India, its soybean, and then it wants India to open its agriculture sector. That is not possible. So there are hidden aspects to it also. Putin is asking not just for all Ukrainian territories that Russia currently occupies and a ban on Ukraine entry into NATO, but he is also saying that Zelensky must also be removed. So that's why the game is going on and the ball is in other one's court, and we are also doing our bit, whatever is required. So with these ideas, I leave you so that you prepare your own notes and look into thinking aspect, so that you are able to make a kind of a great and a meaningful start, which is going to help you to write wonderful answers in the main examination, as our lot of playlists and series are showing you. Thank you very much for connecting, understanding, and going beyond the normal, I should say, a ritualistic and a mechanical exercise with Ansar Kari. Thank you very much.